والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين انتہائی صد قابل تعظیم و تکریم معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان ماہانہ پروگرام بسلسلہ 11ویں شریف جو کہ ہر چاند کی 11ویں اپنا مرکز چمنستان طاہریہ پر منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہم آپ سب حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات میرا آپ کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سفر جو دور دراز سے قرب و جوار سے ہم آپ کر کے آئے ہیں، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الثانی اس مہینے کے اندر حضور غوث الاعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قطب ربانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، اور اسی مناسبت سے اس مہینے کے اندر جو 11ویں کا پروگرام ہوتا ہے اسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ میری آپ کی یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے ذکر کے لیے آئے اور سجن سائیں کے در پر آئے۔ حقیقت میں جتنے بھی مراکز ہیں اللہ آباد شریف کی زیر نگرانی وہ سجن سائیں کے ہیں۔ آگے تو میرے مرشد کریم نے مونیٹر خلفائے کرام کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک مرد کلندر کے دربار پر آئے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مجالس کے اندر ہمیں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تخیر تلاوت قرآن کریم کے بعد ہدیہ نعت ہوگی، نعت کے بعد منقبت کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد پروگرام کا شیڈیول کچھ یوں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عزت مآب محترم جناب پروفیسر خلیفہ عبدالغفار غزالی صاحب ان کا خطاب ہے، اور اس کے بعد محترم جناب خلیفہ فقیر صلاح الدین ایوبی طاہری ان کا بھی خطاب ہوگا۔ پھر آخر میں ذکر قلبی کی بھی اجازت ہوگی جو ہماری سجن سائیں کے خلفاء کا ایک طریقہ ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ کچھ پروگرام کا موٹا موٹا شیڈیول ہے، اس میں کمی بیشی جو آئے گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب میں ہدیہ نعت کے لیے محترم جناب فرقان احمد طاہری صاحب اگر موجود ہیں تو وہ مائک پر آئیں،
और आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया इनात मोहतरम जनाब खालिद तारी साहब ब्रांच समड़ियाल वो माइक पर आएँ और आकर आकाए नामदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात के चंद अशार पेश फरमाएँ। तमामी अहबाब दारों ते दवाइयाँ मेरे यार रहन दे, दारों ते दवाइयाँ मेरे यार रहन दे, इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे, दारू ते दवाइयाँ मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। सोनिया मैं मंगदा नहीं ताजदारियां, सोनिया मैं मंगदा नहीं ताजदारियां, अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे, ते आसे पासे चाती आंदी ओ सानू लोड़ नहीं, आसे पासे चाती आंदी सानू लोड़ नहीं, ओ लगी तू मदीने वाल तार रहन दे, लगी तू मदीने वाल तार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। अब हदिया नात के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ तारी साहब ब्रांच डोगरा वाला वो माइक पर आएँ और आकर अपनी आका की बारगाह में हाज़री लगवाएँ। तमामी अहबाब हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है, ये हाज़री का शरफ बार बार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मनक़बत का सिलसिला हदिया मनक़बत के लिए मोहतरम जनाब फुरकान मतारी साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और आकर अपने पीर व मुर्शद सज्जन साईं की शान में हदिया मनक़बत। हक सजन पीर दवारा तेरा सहारा मेरा, दवारा तेरा सहारा मेरा। करम दिया नजरा कर दो सजन मेरी झोली भर दो, करम दिया नजरा कर दो सजन मेरी झोली भर दो। दवारा तेरा सहारा मेरा, सदका सदीक दाते वास्ता फरूक दा, मुखड़ा विखा जा सजना दिल पे आकूक दा। सदका सदीक दाते वास्ता फरूक दा, मुखड़ा विखा जा सजना दिल पे आकोक दा। तू दीद करा जा ते प्यास बुझा जा, करम दिया नजरा कर दो सजन मेरी झोली भर दो। दवारा तेरा सहारा मेरा, अरशात फरशाए उते फैज़ दी दुहाई है। सारा जग छड़ के सजना तेरे नाम लाई है। अरशात फरशाए उते फैज़ दी दुहाई है। सारा जग छड़ के सजना तेरे नाल लाई है। तू करम कमावी ते तोड़ निभावी, तू करम कमावी ते तोड़ निभावी। करम दिया नजरा कर दो सजन मेरी झोली भर दो। दवारा तेरा सहारा मेरा, करम दिया नजरा कर दो सजन मेरी झोली भर दो। के लिए मोहतरम जनाब अल्लाह दिता साहब आप नारोबाल
उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर आएँ और आकर अपने पीर मुर्शिद की शान में हदिया मनकबत की करना यो जिंदगी नो मेरे पीरां दे ना कर दे ए कीमती बन जासी एक निकी जई हाँ कर दे की करना यो जिंदगी नो मेरे पीरां दे ना कर दे ए कीमती बन जासी एक निकी जई हाँ कर दे सजन दिलां दा सौदागर है ओए अल्लाह बाद विच लाए डेरे सर सजद च रख दे सी ओए मुक जासन गम तेरे सजन दिलां दा सौदागर है ऐ अल्लाह बाद विच लाए डेरे सिर सजद च रख दे सी ऐ मुक जासन गम तेरे तू सजना दे कदमा तो जुल्फां दी छां कर दे ए कीमती बन जासी एक निकी जई हाँ कर दे हदिया मनकबत के लिए मोहतरम जनाब मोहम्मद उस्मान तारी साहब माइक पर आएँ और आकर अपने पीर मुर्शिद की शान में हदिया मनकबत मोहतरम जनाब मोहम्मद उस्मान तारी साहब तमाम बेड़ा सज्जन पीर वाला लैंदा पे तारियां बेड़ा सज्जन पीर वाला लैंदा पे तारियां जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां जिसने इलाहाबाद जाना कर लो तैयारियां बेड़ा सज्जन पीर वाला लैंदा पे तारियां सज्जन पीर वाला लैंदा पे तारियां जिसने इलाहाबाद जाना कर लो तैयारियां जिसने इलाहाबाद जाना कर लो तैयारियां जेड़ा मुरीद होवे रब दे करीब होवे ओ जेड़ा मुरीद होवे ओ रब दे करीब होवे जिंदगी नो चैन आवे दिल विच करारियां जिंदगी नो चैन आवे दिल विच करारियां जिसने इलाहाबाद जाना कर लो तैयारियां जिसने इलाहाबाद जाना
कर लो तैयारियां बेड़ा सज्जन पीर वाला लैंदा पे अतारियां जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारियां जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारियां अल्लाह एहसान कीता कामिल जवान दीता अल्लाह एहसान कीता कामिल जवान दीता ए हो जय महबूब नाले लाल वो यारियां ए हो जय महबूब नाले लाल वो यारियां जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारियां। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तड़प रहे हैं कि कब बुलावा आ जाए और हम अल्लाहबाद चले जाएं मोहब्बत से। जिसने अल्लाहबाद जाना कर लो तैयारियां जिसने अल्लाहबाद जाना कर लो तैयारियां जिसने अल्लाहबाद जाना ओ पीर हजारा फिर दे लोका तो मंगते फिर दे पीर हजारा फिर दे लोका तो मंगते फिर दे पीर हजारा फिर दे लोका तो मंगते फिर दे होना तो लेना किए निरिया बेमारियां होना तो लेना किए निरिया बेमारियां जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारियां जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारियां पीर भी बेनमाजी मुरीद भी है वे राजी ओ पीर भी बेनमाजी मुरीद भी है वे राजी उन्होंने वलिया खड़े मताने मारिया उन्होंने वलिया खड़े मताने मारिया जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारियां जिसने अल्लाह बाद जाना। और हमारे शेख कामिल हैं और उनका कमाल क्या है सिंध विच जाके देखो नक्शा सहाबा वाला अल्लाहबाद जाके देखो नक्शा सहाबा वाला फर्ज ते वाजिब पूरे सुनता भी सारिया फर्ज ते वाजिब पूरे सुनता भी सारिया रियासत जे कई हजारा लेंदे ने मौज बहारा
सजे कई हजारा लेंदे ने मौज बहारा हो जिन्नां भूल गया ने बदिया ओ सारिया जिन्नां भूल गया ने बदिया सारिया बेड़ा सजन पीर वाला लैंदा पिया तारिया बेड़ा सजन पीर वाला लैंदा पिया तारिया जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारिया जिसने अल्लाह बाद जाना कर लो तैयारिया असा अल्लाह बाद जाना असा अल्लाह बाद जाना करिया ओ कीतिया तैयारियां बेड़ा सजन पीर वाला खुदाया कि तूने सोना पीर दिया, सद शुक्र खुदाया कि तूने सजन पीर दिया। बंदगाने ख़ास अल्लामुल ग़ुयूब वहज़ुरूहुम हुम जवासिसुल क़ुलूब। हमारा ये अक़ीदा है, हमारे शेख हमारे सैयदी व मुर्शदी हुज़ूर क़िबला आलम महबूब सजन साईं दामत बरकातुहुल क़ुदसिया आपकी नज़र करम है और हमें देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह वाले हर वक्त अपने मुरीद को देख रहे होते हैं। तो हमारी और भी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे सैयदी व मुर्शदी हुज़ूर क़िबला आलम ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सजन साईं दामत बरकातुहुल क़ुदसिया के दो खुलाफाए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम दोनों को दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। और इससे बढ़कर और क्या खुश नसीबी है कि दो खलीफा मेरे महबूब सजन साईं के और मेरे महबूब के दयार से एक और हस्ती तशरीफ़ लाई हैं। मेरे सजन साईं की दरगाह से मेरी मुराद मोहतरम जनाब मोहम्मद नईम ताहरी साहब जो कि हमारे सिंध से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मेरे यार की नगरी से, मेरे महबूब सजन साईं की नगरी से, अपने यार के देश का तो कोई और चीज़ नज़र आ जाए तो ईद होती है। मेरे सजन साईं के बिल्कुल करीबी हैं जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनको भी दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। बिला तख़ीर दावत खिताब इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब प्रोफेसर खलीफा अब्दुल गफ़ार ग़िसाली आपकी खिदमत में मुअद्दिबाना मुल्तमिस हूँ कि जनाब माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आकर हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शान मुस्तफ़ा फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह का लाखा एहसान कि जिस माल के कायनात ने हमें अपने पीर व मुर्शद की दरबार में एक मर्तबा फिर इकट्ठा फरमाया। ऐसे एहसान तादेर दमे मर्ग तक अल्लाह हम फरमाता रहे और इन अजीम लोगों का हम पर साया ता दमे मर्ग हमें नसीब फरमाए।
इस माह मुक़द्दस के अंदर आपको और हमें मालूम है कि जिन्हें हम पीराने पीर गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकद के नाम से जानते हैं, ये माह मुक़द्दस उन्हीं के नाम से और ये दिन ख़ास उन्हीं के दिन से मंसूब है। यकीनन कायनात में मुसलमानों के अंदर जहाँ कहीं भी आज का दिन उनकी अकीदत के लिए मनाया जा रहा है, वो खुशकिस्मत लोग हैं। और हम फ़ख्र से कहते हैं हम उन खुशकिस्मतों से भी बुलंदो बाला खुशकिस्मत हैं कि हम सज्जन साईं के ज़ेरे साया पीर रियासत अली की नुमाइंदगी में हैं। औलिया से मोहब्बत इस चीज़ का दर्स होता है कि जो इंसान गुनाहगार हो और वो अपने आप को समझे, अपने ज़मीर से ये आवाज़ निकाले कि मैं गुनाहगार हूँ, तो अल्लाह ने वाज़े कुरान में इरशाद फरमाया कि इमामुल अंबिया के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन जिनके ज़मीरों में ये बात आ गई कि हम गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह पिछले दिनों में कोई ना कोई तू नबी भेज दिया करता था, अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है। अब अगर ज़मीर ये कहे कि हम गुनाहगार हैं, कहाँ जाएं? कुतुब सैर के अंदर ये लिखा है कि नमाज़ें पढ़ने से गुनाह नहीं छूटते, रोज़ा रखने से गुनाह नहीं छूटते, तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा गुनाह नहीं छोड़ सकता। ज़मीर एक आवाज़ देता है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अब मैं गुनाहगार बंदा नबी की सोहबत तो नहीं पा सकता, सहाबा हमसे चले गए उनकी सोहबत तो नहीं पा सकता, वो औलिया किराम जिनका नाम मैंने किताबों में सुना था उनकी सोहबत में नहीं पा सकता, अब मैंने गुनाहों को छोड़ना है। ऐ अल्लाह मैं खुद इस काबिल नहीं हूँ, मेरा नफ्स बड़ा जालिम है, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह वाज़ेह इरशाद फरमाता है औलिया की सोबत अख्तियार कर लो। कुरान पाक में भी आया, अल्लाह ने फरमाया उन लोगों की सोबत अख्तियार करना जिन पे मैंने इनाम किया हुआ है। जब उनके पास बैठोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम गुनाह छोड़ जाओगे। अब ये सिलसिले चलते आए। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकद ने एक अजीम नाम दिया, जिस नाम से आज हम ये दिन मना रहे हैं कि 11वीं शरीफ। तमहीद काफ़ी लंबी है कि इस दिन में क्या क्या हुआ आप भी जानते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। उनको ये मालूम था कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने अपने कामों में होंगे, कोई ख़ास त्यौहार दे दिया जाए जिसमें हम इकट्ठे हों, अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लें। उन्होंने फिर जब तारीख़ को देखा, कुरान के अवराक को पढ़ा, तो उसमें चाँद की 10 तारीख बड़ी नुमायाँ थी, बेशुमार वाक़यात हो गुज़रे थे। उस निस्बत से आपने इस दिन को मुकर्रर कर दिया कि भाई 11वीं के नाम से मंसूब इस दिन को मनाया करो। खुशकिस्मती है जो मुसलमान इस दिन को अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ करते हैं। और सबसे बड़े खुशकिस्मत हम ताहिरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनकी निस्बत को देखो। पिछले दिनों में भी मैं जब आपके चेहरे देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ कि आप वो बूटियाँ हैं जिनको मेरे पीर सजन साईं ने पाला, पानी पीर रियासत अली देते रहे। और जब देखा कि कमी होती थी, मेरे पीर की दरबार में आपको एक टोले की शक्ल में ले जाया करते थे और यह ऐलान होता था कि पूरा साल गुनाहों में भरे हुए हैं, कोशिश के बावजूद गुनाह नहीं छोड़ रहे, तो आप फरमाते थे आओ, जिस तरह के है ना, बेड़ा सोने पीर वाला लैंदा है तरारियां। हाँ, आप फरमाते थे तैयारी कर लो, वहाँ चलते हैं।
कुछ सट्टा मैं मारियां ने, थोड़ा जिहा रह गया, इको ही वदान बजेगा, हक सजन पीर, बेड़ा पार हो जाएगा। और जब दो आशिको माशूक के दरमियान से निकलने वाली शुआएं किसी के दिल में पैवस्त होती हैं, जितना भी वो जालिम हो जाबिर हो दिल का, अल्लाह की कसम मोम हो जाता है। और मैं तो छोटी सी जिंदगी में ये नहीं जान सका कि कुर्बान जाऊं अपने पीर रियासत अली पर। ये अल्फाज इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पीर सज्जन साईं ने मेरे पीर को पीर कहा था। इसलिए मैं बावर करवाना चाहता हूं कि ये क्लिप बनेगा और किसी खास जगह पे जाएगा, मुझे पता है। मेरे पीर को पीरों के पीर ने पीर कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि उनकी रूहानी औलाद का दर्जा हमें हासिल हुआ। मैंने छोटी सी जिंदगी में अल्लाह की कसम ये नहीं पहचाना कि मैंने किताबों में पढ़ा, आप लोगों से सुना, लोगों की बातों में से मैंने ये बातें सुनी कि हर बंदा अपने पीर का आशिक होता है। हकीकत हकीकत हर बंदा अपने पीर का आशिक होता है। ये बात लाज़िम मलजूम है, लेकिन छोटे से ज़हन ने आज तक ये नहीं समझा कि मुझे ये मालूम हुआ कि अल्लाह की कसम, ये लफ्ज़ कसम का इस्तेमाल मैं अपने लिए कर रहा हूं, अल्लाह की कसम मुझे ये मालूम नहीं हुआ, पता नहीं सजन साईं आशिक है या पीर रियासत अली आशिक है। ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं कि आज तक मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि दोनों शख्सियात में से माशूक कौन और आशिक कौन है। फिर मैंने तन्हाई में यह सोचा कि हाँ, पीर रियासत अली साहब फरमाया करते थे कुछ मुरीद मुराद होते हैं, और मेरा पीर रियासत अली अल्लाह की कसम सज्जन साईं का माशूक है। इसीलिए ताहरी जमात सारी अजीब सी एक जमात है जिसका मुकाबला कायनात के अंदर मौजूदा दौर में कोई नहीं कर सकता। हम ये ऐलान कहते हैं कि कायनात के जितने पीर हैं अल्लाह उनकी गद्दियों को सलामत रखे, जहां कहीं भी वो हैं अल्लाह उनको कायम और दायम रखे, लेकिन सज्जन साईं वर्गा कोई नहीं। ये हमारा ईमान है। और अब हम ताहरी जमात में आ जाते हैं। अपने अपने अकीदे की बात हो रही है। पहले हमने कायनात के अंदर यह बात कर दी कि अल्लाह तमाम गद्दियों को सलामत रखे, जहां कहीं भी कोई है अल्लाह उनके पीरों को सलामत रखे, उनके मुतल्लिकीन पर, उनके पीरों का उन पर साया सलामत रखे। और अब हम ताहरी कौन है? सज्जन साईं की सारी जमात ताहरी है, और अल्लाह के फजल से सारी ताहरी जमात मंबाए नूर है और डंडा पीर रियासत अली का है। सारी जमात एक नूर है, इसमें कोई शक नहीं। जिस पे निगाह मुर्शिद पड़ जाए, सज्जन साईं की निगाह हो जाए, उन जैसा हो कोई नहीं सकता। और जिस पर सज्जन साईं के साथ साथ पीर रियासत अली के साथ एक जुड़ जाए, उस जैसा ताहरी कोई नहीं हो सकता। ये आप जैसे खुशकिस्मत लोग हैं कि जो आशिको माशूक में से निकलने वाली शुआ के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसे शायर के आप गुलाम थे, हैं और इंशाअल्लाह तादा में मरग रहेंगे, जिसने अपनी शायरी में अपने पीर को ना नबी कहा ना खुदा कहा, बल्कि नूर से जुदा ना किया। उनके हर अल्फाज में एक ऐसी ताकत थी और अब भी है। जब वो अल्फाज माइक पर बोले जाते हैं तो किसी के दिल को कौन जानता है। दुनिया गलत अंदाज करती है किसी को देखकर, खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पर क्या गुजरती है, इसमें कोई शक नहीं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब वहां से बुलावा आएगा, वही रौनकें होंगी, वही महफिलें होंगी। पहले जाहिरन थे, अब रूहानी तौर पर हमारे साथ होंगे। जो जो तसव्वुर करेगा वही पाएगा,
जो तसव्वुर से हटकर दुनिया की हकीकत को देखेगा उसे कुछ हासिल नहीं होगा। और जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, सामने अपने पीर के नक्शे को देखते हैं, तो यकीनन एक अजीब सी मै आती है, मोहब्बत आती है। हमने मिलकर अपने उस पीर के मैखाने से एक ऐसे अजीम लश्कर को लेकर निकलना है। बस फकत इंतजार है तो एक ऐलान का है, जिसमें हम होंगे, आप होंगे, दुनिया होगी, लेकिन हमारे साथ जाहिरन हमारे पीर मौजूद नहीं, जिन्होंने हमें सज्जन साईं का एड्रेस समझाया था, बताया था। हाँ, जब यहां से निकलेंगे तो यकीनन पहले साथ चलते थे, अब उनके मज़ार पे जाया करेंगे और दुआएं लेकर जब उस बारगाह में जाएंगे। मेरे पास एक मैसेज मौजूद है, इसलिए बात कर रहा हूं कि सारी दुनिया पे जा रहा है। हजूर ने फरमाया कि रियासत अली की कमी जमात में पूरी नहीं होगी, ये खला पूरा नहीं होगा, जमात का बहुत बड़ा ये खला पूरा नहीं होगा। तो मुझे महसूस हुआ कि माशूक इस दुनिया से गया है, आशिक तड़प उठा है। पहले मैं समझता था कि माशूक कहीं और है, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है। मैं पहले समझता था कि माशूक कहीं और है, लैला कहीं और बसती है, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने पीर सजन साईं के फरमूदात से कि उनकी जुबान अतर से निकले लफ्ज मुझे ये महसूस करा गए कि माशूकों में से आला माशूक रियासत अली, और हम खुशकिस्मत हैं, उनकी जमात में पैवस्त हैं। उन जैसा शौक और जज्बा तो हम में नहीं, हो भी नहीं सकता। नकल तो कर सकते हैं, नकल तो कर सकते हैं। जैसे ही यहां से निकले, एक ऐलान के इंतजार में अल्हम्दुलिल्लाह किबला सलाउद्दीन साहब की क़यादत में निकलेंगे। वही दौर होगा, वही करिश्मा होगा, उसी अंदाज में, उसी सफर में निकलेंगे। पहले वो साथ होते थे, अब उनकी मनकबतों के साथ साथ हम जाएंगे। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अपने अपने इलाके में, मैं यहां कोई तकरीर करने नहीं आया था, सिर्फ आप लोगों को देखने के लिए आया हूं। अपने अपने इलाकों में दोस्तों से नाम लेने शुरू कर दो। एंड टाइम पे किबला सलाउद्दीन साहब परेशान हो जाते हैं, शुगर वाले, और यार मैं तो 150 कराई है, 200 कराई है, तो बंदे ने कितों आगे ने। हमेशा परवाने शमा पे आते हैं, कोई परवाना दूसरे परवाने को कभी भी नहीं बताता। कभी गौर कर लेना, जब शमा में परवाने आते हैं वो इतला नहीं करते, उनके अंदर एक मोहब्बत ऐसी होती है, वो खिंची चली आती है, और हजारों उस शमा के इर्द गिर्द रहते हैं। जब देखे जाते हैं तो कई हलाक हो चुके हैं उस मोहब्बत में, उस रोशनी में। तो ये परवाने हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं, इनको बस पता चल जाए कि शमा रोशन हो रही है। स्टेशन में समझ नहीं चलती, और इंतजामिया वाले तो बहावलपुर तक इसी परेशानी में होते हैं, बिठाएं कहां पे। इंशाअल्लाह उससे भी दुगनी मेहनत और हिम्मत से हमने निकलना है, अपने जज्बे को जवां करके निकलना है। और जहां कहीं भी आप हो, अपने अपनी ब्रांचेस में उनके नाम लिखो, और वो नाम किबला की खिदमत में पेश करो कि इतने बंदे तैयार हैं, उसी हिसाब से कि जैसे ही ऐलान होगा, सिर्फ आप ही तारी नहीं है पाकिस्तान में, हर बंदे की नजर उस शमा की तरफ है। जैसे ही वो शमा ऐलान करती है, ट्रेनों में जगह नहीं बनती। हमारी ये कोशिश हो, इंतजामिया की कोशिश हो कि जैसे ही शाम को पता चले तो बंदा लाहौर में या सियालकोट में मौजूद हो, और ये आपके तावन से होगा। आप अपने अपनी ब्रांचेस में नाम लिखें, जो जाना चाहते हैं पहले से ज्यादा निकलें, मिस्त्री हजरात हैं वो पहले से ज्यादा निकलें, हिम्मत से निकलें, पता चले वहां पर। जब वहां पहुंचेंगे, इस मर्तबा मैं बता रहा हूं कि एक अजीब रंग होगा, इस मर्तबा एक अजीब रंग होगा।
जिस तरह हज़रत साहब फरमाते थे ना, जिस रंग विच तैनू तेरे पीर रंगिया, उस रंग विच थोड़ा जिन्ना रंग मंगिया। हज़रत साहब तो इसलिए थोड़ा मांगते थे ना कि कोई बहक ना जाए, वो तो बड़े ज़र्फ वाले थे, वो हमारे लिए मांगते थे। लेकिन अब ये है कि अब वो भी शमा फट रही है, वो जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वो रंग थोड़ा जिन्ना नहीं होगा। अपने बर्तनों को जरा साम के चलना, जब वहां पहुंचेंगे अपना रंग देखना कि मेरा पीर किस रंग में तुम्हें अता करता है। पहले रंग कुछ और होता था, अब रंग ही कुछ और होगा। ये सारी फ्यूज़ो बरकत मेरे पीर रियासत अली की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ यही तारफ़ करवाने के लिए आया था कि भाई अल्लाहबाद के लिए तैयारी करो, जितनी जल्दी हो सके अपने नाम पहुंचाओ। निकलने से पहले अपने घर के अखराजात मुकम्मल कर लो। मिस्त्री हजरात तो वैसे भी मरकज़ पसरूर के हवाले होते हैं, हम उनके लिए नौकर हैं। जो मिस्त्री जाना चाहे वो मेरे कोटे में है, मैं जानूँ और मिस्त्री जाने। बाकी फुकरा जो हैं वो साईं जाने तो साइयां दा काम जाने। मिस्त्री मेरे साथ होंगे जिस तरह लेके जाते हैं, बाकी सब दोस्त साईं से रब्ता करें, इंशाअल्लाह अन करीब वो खुशखबरी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आवाज़ सुनन साढ़े कान तरस दे सन पे। असी मोहतरम जनाब खलीफा अब्दुल गफ्फार गजाली साहब का शुक्रिया अदा करने कि सानू ना खुशखबरी सुनाई है। तो किबला फरमा रहे सन जिथे शमा जले परवाना होंदा है, मेरे सजन साईं दे जेड़े परवाने ने ना, शमा ते रात नू जले तो फिर परवाना होंदा ना, ये दिने भी जले तो फिर भी परवाने आ जाते हैं। ये मेरे सजन साईं का फैज़ है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कुछ आस लगाई। असी तो कदों दी आसां ला के बैठे हाँ, कदों बुलावा आए तो यार दी नगरी विच जाइए, ते नौकर बन के जाइए, ते गुलाम बन के जाइए। सच्ची बात है वे ज़ारा तौर पर कमी, बल्कि असी तो भी महसूस नहीं करते, क्योंकि बंदगाने खास अल्लाहुल ग़ुयूब वहज़ुरूहुम जवासिसुल क़ुलूब, ये कोई आम मर्द कलंदर नहीं, ये सजन साईं के खलीफा हैं। ये पीर सोना साईं का फैज़ है, ये आम हस्ती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पर तो हमारे पीर व मुर्शद पीर रियासत अली साहब हमारे साथ होंगे। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे कानों तरस रहे थे, साईं आपने आवाज़ सुनाई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिला तखीर दावत खिताब इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब फ़कीर सलाहुद्दीन अय्यूबी ताहरी आपकी खिदमत में मुक़द्दमाना मुल्तमिस हैं कि हुजूर अपने मलफ़ुज़ात आलिया से हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सादकी का लफ्ज़ है जो कुरान में, हक ने फरमाया है वलियों की शान में। अल्लाह अल्लाह किए जाने से भी अल्लाह ना मिले,
अल्लाह से मिला देते हैं। अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, तुसां गुफ्तगू सुनी, गजाली साहब माशाअल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू की थी। इन्हां दिनां विच इहो ही गुफ्तगू असीं सुनदे हुंदे सी। सानू अदर साहब तैयार करते सन, एक वलवला देंदे सन, शौक दिवांदे सन। यकीनन वो समा है, वो ही चीज़ है, वो ही गुफ्तगू हो रही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जिवें गजाली साहब गल कर रहे सन ना, मैं उन्होंने ही नाल अटैच करके आखांगा कि अल्लाह तबारक तआला ने कुछ इनाम दिते ने बंदियां नूं। वो इनाम जिन्ने भी ने, तुसीं सारियां ते गौर करो। बंदे दी अख ये किड्डा इनाम है, इनकी कदर नबीने नूं पुछो। इसे तरह इंसान है ते इंसान दी कदर जानवर कोल पुछ, जिहड़ा बोल के भी नहीं दस सकदा कि मैनूं दर्द है, मैनूं बुखार है, लेकिन अल्लाह ने तेनों इंसान बनाया। ये भी एक इनाम है। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा इनाम दिता तेनों कि अल्लाह तबारक तआला ने साडे जैसे नाकस ते गुनाहगारां नूं अपना महबूब अता किया। ये भी इनाम है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस इनाम का एहसान भी जतलाया कि ऐ ईमान वालो, मैं तुहाडे ते एहसान किया, तुहानूं मैं अपना महबूब अता किया। फिर दोस्तों, इस नाल चलदियां आ जिहड़ा सानू अल्लाह दी जात ने कामल पीर मिलाया, महबूब सजन साईं, ये भी इनाम है। ये कोई घट इनाम नहीं। अगर सानू नबियां दे सिरदार दा उम्मती किया तो दोस्तों मैं आखांगा वलियां दा जिहड़ा सिरदार है सानू उहदी गुलामी दी, सजन साईं। फिर यह भी इनाम है कि सजन साईं दे बेशुमार खुलफा कराम ने, सारे साड़ियां अखियां दा ताज ने। फिर सानू पीर रियासत अली साहब की सोबत मिली। वो उर्दू का एक शेर है कि गो लाख बुरे है हम कहलाते तुम्हारे हैं। असी जियो जी भी आए, असी कहलाने किन्ने आए? पीर रियासत अली दे कि जी ये उन्हां दे बूटियां ने, आपने पहले मनकबत बनाई। असी सारियां सईयां इयो आस लैके आईयां, खाली किसे नूं न मोड़ी पावी खैर सोना साईयां। माली हत्थां दियां बूटियां नहीं कदे भी वंजाइयां, माली हत्थां दियां बूटियां नहीं कदे भी वंजाइयां, खाली किसी ने न मोड़ी पीर सोना साईयां। हजरत साहब ने पहले ही लिखियां ने और अज साडे ते पूरियां फिट होंदियां पईयां ने, सानू अज भी उंज लज़त आ रही है। ये जड़ियां बूटियां ने, ये जिहड़े ताहरी ताज नज़र आ रहे हैं, कोई नौजवान ने, कोई बुढ़े ने, कोई किवें ने, ये उन्हां दियां बूटियां लाइयां होईयां ने। और सजन साईं दी पूरी नज़र है, वो तो माली बन के बैठे होने। और जिवें सुनिया तुसां कि हुण ये वेला मंगने दई, असा समझदे ने ये वेला मंगने दई, कुछ मंग ला। वो नवाजन ते आए हुए ने, वो देऊ ने कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आदि ने, ये पीवन गिजे हुए ने। साडा जिहड़ा लीडर सी उन्हें आख्या सी ना, एक दो बोतल नहीं चलनी, इत्थे पूरा ही मट पिला। ये सारे दीवाने बैठे ने, असी ते ये भी देखो ना, ये भी ऐसा मनकबत लिखी, मैं रोंदी ना मर जावा मैनू सिंध बुला लो जी। तेरी जुदाई सानू कीता है जलिया, तेरे बाजों रहना निकलिया, तेरा वेख के मुख ठर जावा कोल बुला लो जी। असा ने तरज ना पढ़ी, बड़े मजेदार है। पेऔसियां पापा वेखनिया, हुण फकीर तो पेऔसियां पापा वेखते ने, कदों ऐलान होवे, किदन सानू ये
हुक्म होवे असीं अपने उन्हां जे वादे कीते हुए ने अपने पीर नाल वो पूरे करिए। क्यों हज़रत साहब ने ये एक मरतबा फरमाया ना कि मैं गल की थी, कोई मैटर सी कारोबार के हवाले नाल, फैक्ट्री के हवाले नाल कि नहीं है इस तरह का कोई सिस्टम नहीं तो कोई करना चाहिए। तो ऐसा हमारे ने पुत्र मेरे वाला काम बड़ा सही है, फकीर बन जाओ तो फकीरी नूं अरूज है, फकीर बनो ते सज्जन साईं का दर ना छड्या जे। सज्जन साईं के दर ते मैं उत्थों ही मिलिया जी मैनू सब कुछ। फिर आपने दसिया ऐसा फरमाते ने बई फकीरो शायद वो फकीर नाल सुनी होवे गल कि मैं लंगर का काम ही तो करदा ज्यादा करदा। उदों तो कोई उर्दू बोलने वाला भी कोई नहीं सी, सारे सिंधी होंदे सन। सोहना साईं के दौर च मैं काम करदा, जेड़ा काम लभना समझ आ जानी कर लेना, सिंधियां की समझ भी नहीं सी आउंदी। फिर हौली हौली हुण तो थोड़ी मेरी काम ही बड़ा आसान है, उर्दू भी पंजाबी भी हर चलती है बोली ते इहदे विच फैज़ है। ऐसा फरमांदे ने बुल्ले शाह का शेर सुनिया जे, पढ़ते सारे ही हैं। रब रब करदे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा कर कर पैंडे हारे। बुल्ले शाह रब तां तेरे अंदर वसदई करे कुरान इशारे। अगले अखीरले मिसर से सारे निचोड़ कर छड़िया। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदे जेड़ा पीर तो तन मन वारे। हज़रत साहब ने सानू ये साडी जाका ला छड़ी हुई है, ये फकीर तन मन वारदे ने ते ये बई ठीक आख्या कि अपना नां लिखाओ, पता लगे भी इन्ने के साडे कोल अंदाजन फकीर हो गए ने। जो ही ऐलान होवे वो बंदा साडा स्टेशन से खड़ा होवे, वो आखे लो जी इन्नियां सीटां बुक कर दो। उस टाइम से ना पूछना पवे किन्ने किन्ने जाना है। तुसीं ये समझो कि एक आइडिया है रफली कि आप इंशाल्लाह 20-21 तक हो सकता चले जाइए। अंदाजन अपने जहन च रख लो कि असा 25 तरीक नूं 24 नूं 20 नूं जदों भी 20 के अगे पिछे हो सकता बुलावा आ जाए, तो तुसीं जहन बनाओ, अपने आप को तैयार रखो। हज़रत साहब फरमाते हैं भी कणक क्यों बीजते हो कि जी कोई साल के दाने हो जाए। तो यार इत्थे इलाहाबाद लंगर के काम से आओ, साल के दाने नहीं जे लैने। बई हज़रत साहब फरमाते हैं जिंदा वीज़ा नहीं लगता आओ थानू उतो वीज़ा लैके देवीए, जिन्हों औलाद नहीं होंगी आओ थानू उतो औलाद लैके देवीए, और जिसनों शफा नहीं मिलती बे आसरा हो गया मायूस हो गया आओ थानू शफा लैके देवीए। हर चीज़ मिलती है उतों, ईमान मिलता है। सच्ची गल दसो कि जिस स्टोर तो थानू हर चीज़ मिले, तुसी हर बंदे नूं रस्ता देंदे हो कि यार उत्थे चला जा तेनू मिल जाए। ये दर जिहड़ा सानू हज़रत साहब पीर रियासत साहब दस गए ने, इस दर तो खुदा मिलता है। जिस दर तो खुदा जैसी हस्ती मिल जावे बाकी की रह गया। और ये बड़ी ही अच्छी दलील है कि अल्लाह जदों भी मिलता फकीरां च मिलता, ना मंदिर मसीतां च मिलता। अल्लाह जदों भी मिलता फकीरां च मिलता। भाई अल्लाह बाद मिलना है। हज़रत साहब ने वादे दसिया ये भाई थोड़ी मेरी खुश नसीबी है कि साढ़े नां दे नाल लेबल लगा जाए कि जी ये सियालकोट की जमात है, ये खलीफा रियासत साहब की जमात है। इंज ही है ना। थानू याद होवे कि थानू एक सदिया क्यों गया सी। सियालकोट की जमात नूं लंगर के काम वास्ते सब तो पहली बारी क्यों बुलाया गया सी। ये भाई साडा कमाल नहीं, ये हज़रत साहब का कमाल है। उदों कोई गल बनी, फकीर तो सारे मुहब्बत वाले ने, साढ़े नाल ढेर इशक चगे ने, कोई सुस्ती हो गई काम ना होया तो ऐसा फरमाया हजूर की बुला रहा अबू सज्जन से फरमाते हैं मैं अपनी जमात बुला लेता हूँ।
फिर हजरत साहब ने फोन किया, उदों पहली बारी 7 बंदे गए सन। उन्होंने 7-10 बंदियां ने इन्ना काम किया, वो जरा ठेकेदार सी ना मिस्त्री हमीद, वो ये इतराज़ करता कि हजूर कोई बंदा भी काम नहीं करता, कराची वाले ने, हैदराबाद वाले ने, सारिਆਂ ਦੇ नाल लवे, पंजाब विच होर भी गए। उनकी तबीयत थोड़ी जी सख्त सी, वो दाबे मारदा सी, गल पूरी नहीं सी दसदा, वो फिर नहीं सी समझ आउंदी। ते कुर्बान जाइए हजरत साहब दे वो हरफन मौला सन, वो समझ गए उस बंदे नूं, उन्हें दाबे भी मारने फकीरां नूं, ते हजरत साहब फकीरां नूं समझाना नहीं। एक दफ़ा मेरे ना सामने गल हुई, वो मिस्त्री इकबाल बड़ा पायदा मिस्त्री है, उन्हें मस्जिद जी हुण मस्जिद है ना, इस तो पहले भी एक मस्जिद सी, उनकी बुनियाद रखी, तकरीबन असी कोई 4 फुट लै गए, 4 इंची का पर्दा, उन्हें बड़े ना साल कर करके बड़ी क्वालिटी नाल बनाई। ये मिस्त्री आया ठेकेदार, इन्हें आके लत मार दी, ढा छड़ी, एक ही किता ही, उन्हें कांडी ते सी फाड़े ते लड़न लग पिया, आखे भी तू जाना नहीं होना, ये चल मैं ला के दस इट, तू ठेकेदार ने लगनी किमें, जे तो लाउनी इंज ही, तो फिर मैं तेरा सिर पाड़ना, 10 लाउनी किमें। इस बहस दे विच हजरत साहब आ गए। हजरत साहब अपने फकीर नूं डांटिया, तू कौन उन्हें गल करन वाला, ठीक है डा दो। जदों असी आए ना तो मिस्त्री रुस्या आया, कम ना करे। हजरत साहब कमरे च आए, सद्या सारे, उदों हजरत साहब साडे कमरे च, मजदूरां वाले कमरे च लेट जाते सन, ते उत्थे बैठ के आखदे ने भाई थोड़ी खुश नसीबी है भी उन्हें ढाई है तो थानू होर फैज मिल गया, तेनों तो मजदूरी मिली है, तेनों ठेका बच गया, तेरी डबल दिहाड़ी लग गई है, ते खुश हो। फिर फकीरां ऐसा काम किया हजरत साहब की क्यादत विच, वो हजूर नूं आखण ते मजबूर हो गया कि हजूर इन्हां नूं मैं की काम दसां, जेड़ा काम भी इन्हां नूं दसना ये इंज कर छड्डदे ने। 10 बाई 7 यानी 10 फुट इसरा ते 7 चौड़ा ते 6.5 फुट डूंगा। ये जी हुण गुस्से नाल मिस्त्री साहब टोया कह गए, आज तो थोड़े को करेन है ना, सारा सिस्टम है, कईयां नाल टोया कटना। मिस्त्री साहब आंदे ने हजरत साहब नूं मुखातब हो के, रियासत अली आया अपने बंदे ला, इत्थे टोया कटना। उन्होंने पता सी कि हजूर असर तो बाद वेखण आउणा है, ये लगे होणगे कित्थों निकलना टोया इन्हां कोलों, ते मैं फिर सच्चा होवांगा। वो फकीरां तो आखने नहीं पाउंदा है, तो सारे कमांडो ने। वो तालब सैन, नाजम सैन, फलक शेर, महबूब, ये फकीर सन, इन्हां ने वो टोया कट दिता। वो सारा टोया कट के ना ते बैठे हुए गप्पां पे लावन, 2 विच बड़े हुए वो कड्डी जावन, ये 2 तो फड़ के ने कई नूं पकड़ के ते लगे हुए प्यारी मस्त चाल च हजूर आए। फरमाते ने मिस्त्री साहब ये तो गहरा ज्यादा नहीं हो गया? मिस्त्री आंदा जी मैं दस गया। हजूर फरमाते ने तू पैरा तो देना सी ना, ध्यान तू रखना, इन्होंने की पता। वो अगों हजरत साहब आंदे सानू टोया कड्ढण दा हुक्म होया है, असां कढ़ छड्डिया जी, इस रोकिया नहीं सानू। उदों दा इस जमात का नाम बड़े अलकाबात मिले, किसी आख्या शहनशाही मजदूर, किसी आख्या सुलेमानी लश्कर है, किसी कुछ आख्या। हजूर ने फरमाया रियासत अली, जदों मुसाफा आया, रियासत अली आप लोगों ने हमें आदत डाल दी है, अब हम आपको बुलाते रहेंगे। हजरत साहब खुशी ना नचे, आप फरमाते ने ये कबूल है। दोस्तों ये वो सौदा है, ये जिमें अगे कह रहे सन ना कि आशक मशूक, ये 11 की आपस च मुआहदे हो चुके हैं। ये साड़ी खुश नसीबी है कि जेड़ा इहदे विच हिस्सा पा लवेगा। ये मत गुरूर च रहो कि मैं नहीं जावांगा तो काम नहीं होवेगा, काम होवेगा। जिमें सुनिया तुसां ये 11 गुणा की ये 1000 गुणा वध होना है।
कि दिन ब दिन ऐसी फकीरां ने कमाल किया, पीरां ने कम लिया, एक कम पीरां लिया, ये भी ज़हन च रखिया जी। हजूर दी तवज्जो नाल ये काम हुंदा सी कि जदों फकीर जाते ने और हजूर पीर सज्जन साईं दी, पीर रियासत अली साहब की पूरी तवज्जो फकीरां लाउंदी है कि फिर जदों फकीर काम करते हैं, नचते हैं, नाल जज्बा करते हैं, हजूर आके वेखते हैं, मुस्कराते हैं। फिर हजूर फरमाते हैं ये लोग अपने दफ्तरों में बैठने वाले हैं, ये काम थोड़े करते हैं इधर, ये तो इधर आकर करते हैं। जिमें गारे च लिबड़े होंगे ने, जिस तरह काम करते होंगे ने। और यकीन कर जो फकीरां नूं एक नशा है, हजरत साहब ने नशा ही बना छड़िया सानू। वो जेड़े ऐसा बंदे ना, मैं नहीं मंगदा शराब अंगूरी, मैनू तौहीद दी शराब पिला। ये फकीरां ने तौहीद दी शराब पीती हुई है। जिन्हों ने पहले काफले च एक दफ़ा चस्की लै ली है ना, वो कहता मैं तो पहले च जाना। ये अज की गल नहीं, हुण बड़े तो दोस्तों थोड़ा जिहा अंदाज़ा हो जाता है कि तुसीं दस्सिया करो। हज़रत साहब की फरमाते हैं, चलो नी चलो सैयो अलाहाबाद चलिए, दार सोने पीर वाला छेती छेती मलिए। ये तो साढ़े को सारा स्वाद है, सारे मवाद है ने। गल ये कि हुण तैयारी कर लो। तैयारी की करनी है? मैं एक मिसाल दे के फिर इजाजत चाहना। जिवें वो 100 कातल, जिन्हें 100 कतल किया सी ते उन्होंने जन्नत मिली। उस इरादा किया कि मैं खुदा दे वली दे दरबार ते उनके कोल जाके तौबा करा। उन्होंने रस्ते च मौत आ गई तो वह बख्शिया गया। तो दोस्तों साढ़े कोल होर कोई अमल ना होया, असी कल क्यामत वाले दिन आखांगे असी सज्जन साईं पीर दे दर ते गुलामी की है, उत्थे नौकरी की है। साढ़े वास्ते इहो काफ़ी है। और जिमें पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुगवे सुबानी मस्जिद से जावन लगे तो पढ़नी दुआ सी, फरमाते ने हाँ ठीक है इंज आखी जा। जेरे नाल मुतलकीन सन उन्होंने कहा या हज़रत ये की फरमा रहे हो? आप फरमाते ने बई वो साड़ी एक सादी जी फकीर नहीं आई तो कब्र च मुनकर नकीर पुछते पे ने मन रबो का, वो अगों आखदी पी है मैं गौस पाक की दोबण हाँ, मैं उन्होंने घर काम कर दिया ही। तो मैं उन्होंने आख्या ठीक है इंज आखी जा। इंशाअल्लाह ताला साढ़े पीर भी इंज ही आवणगे। भाई पहले काफले वाला है। अल्लाह तबारक ताला मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबुल क़ब्र व क़िना अज़ाबुल हश्र व क़िना अज़ाबुस सक़्र व क़िना अज़ाबुल मीज़ान। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा। हमारे गुनाहों से लर्ज़े ज़मीं तेरी ज़ात मौला गफूर रहीम। खार हैं बदकार हैं ज़िल्लत में डूबे हुए हैं, जैसे भी हैं मौला तेरे महबूब की उम्मत से हैं। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।